Now, what I believe is that whenever you're learning any subject, you should first understand the background of that subject. Why is it there in your CA curriculum in the first place, okay? Then when we start understanding that and we learn it, there's a different way we look at the subject. So, whatever you told me right now, I'm not considering it, but I'm telling you a few things now, okay? Now pay attention. First thing that comes to our mind, ki auditing is a very theoretical subject, right? And I ask you, chalo practical subjects कौन से? तो what will come to your mind? Practical में क्या आता है? Costing, FM, accounts, और tax. Very good. ये सब practical में आते हैं. Now, practical word means what you practice, correct? Simply what you do in your day-to-day office का काम. Correct है ना जो मैं बोल रही हूँ? अब तुमको क्या लगता है? तुम रोज बैठ के ऑफिस में कॉस्ट शीट बनाने वाले हो? नहीं. तुम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाले हो? नहीं. तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हो? नहीं. अच्छा क्या बोला तुमने? टैक्स. हमेशा टैक्स रिटर्न्स फाइल करते रहोगे? नहीं. तो अभी तो बोला तुमने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारे ये सब. हाँ दिन भर अकाउंटिंग करेंगे तुम लोग, डेबिट क्रेडिट यही करने वाले हो ऑफिस में? नहीं. तो व्हाट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन ऑफिस मैक्सिमम टाइम्स? Of course you're going to be doing your auditing. Auditing is the subject जो तुम्हारे 3 साल की आर्टिकलशिप अगर मैं लूँ तो कम से कम 2.5 years you're only doing auditing. Tax you will be doing season time में, okay? Accounting hardly will be doing. Costing FM तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं करते हम लोग उसमें. तो बोलने के लिए these are practical subjects, but actually my practical subject is auditing and of course accounts भी है, tax भी. I'm not saying no, but ये जो theoretical तुम्हारे नाम दिमाग में है ना कि this is theoretical, no it's not. It is a completely, in fact, the most practical subject that you have. Second, myth. You know the meaning of the word myth? Myth means some misconception, okay? Second misconception आता है auditing में कि it's like, you know, not scoring. आई अग्री. थोड़ा सा थियोरी लिखने के टाइम पे इट्स नॉट दैट स्कोरिंग. उसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं थोड़ी देर के बाद बोलूँगी, नॉट नाउ, ओके? बट द पॉइंट इज वी हैव हैड अमेजिंग रैंक्स. यू नो वी हैव गॉट द फर्स्ट ऑल इंडिया हाइस्ट रैंक इन ऑडिट वेर इन 83 वॉज द हाइस्ट. केदार इज द स्टूडेंट हु हैड गॉट इट. ही इज अ CA नाउ and he was the first batch student who got. So 83 he got a gold medal for being the highest in the subject. So I can't say it's not scoring. फिर 83 got challenged when we got another student who got 84, okay? Then we got 85, right? But sadly that time the highest was 86 and we got 85. So we got second highest in the country, right? थोड़ा सा हमको बुरा लगा, क्या है ना, एक बार हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट. फिर एक टाइम आया जब ऋषिकेश चौहान करके वन बॉय whose feedback is also there on the book, he got 86 and we are like come on this time sure we have nailed it. फिर से highest आया, लेकिन bad luck उस टाइम पे भी 87 was the highest. We lost it again by 1 mark. Okay, so 3 times we have achieved second rank and first rank. Third rank तो frankly I don't even know, I have not even checked it. But the point is 80s में we have like at least 50 students आराम से you have scored in 80s. 70s में hundreds of students, मतलब पता ही नहीं कितने. And exemption, thousands of students. इतना तो मैं पक्का बोल सकती हूँ. So considering that, what do you understand by that? Can I say it's not scoring? No, it is scoring provided तुम उसको अच्छे से सीखो. Auditing subject students कभी कभी क्या करते, they take it as a bedtime story. एकदम मैं literally बोल रही हूँ, bedtime story. Even I was a student. कभी कभी मैं भी करती थी. I am also saying that. क्या होने का? पूरा दिन वो टैक्स करते करते, अकाउंट्स करते करते, वी आर सो इरिटेटेड, कॉस्टिंग, FM एंड वी आर टायर्ड. फिर शाम को फिर आता है अरे वो IT, SM, ऑडिट, मतलब थ्योरी जो हम लोग समझते हैं ना, देन वी स्टार्ट टेकिंग इट टुवर्ड्स द एंड एंड देयर व्हाट हैपेंस इज वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इंटरेस्ट द होल डे काम कर करके. शाम को पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड एंड फिर इट बिकम्स माई बेड टाइम स्टोरी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वी गो टू स्लीप एंड एग्जैक्टली उसकी वजह से मार्क्स कम मिलते. ओके, then comes the point, why is it there in your syllabus? For that reason I want to ask you a simple question. Think and answer. As a CA, now all of you are becoming CAs, right? So as a chartered accountant we are going to be doing what all things? We are going to be expert in which all fields? Can you tell me? Which all fields you will be an expert? Like, I know this and I'm good at this. Tax, very good. और बोलो. Accounts, right? And
ऑडिटिंग ऑफ कोर्स, एंड कीप सेइंग जो भी तुमको मालूम है, जहाँ तुम एक्सपर्ट हो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, यस. फाइनेंशियल, हाँ. रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, हाँ. What about थोड़ा बहुत costing also you're good at? Finance तो you already said. Tax you all said? अच्छा, you all said that also. Law also we are learning all 3 levels, CPT, IPCC, final तीनों में learn करते हैं ना. तो can I say I'm expert in all this? Yes? Yes or no? Yes, because according to you what you are saying, जो भी हम पढ़ते we are experts ना. We are the best. Correct ना? तो चलो एक आई ओपनर अभी तुम्हारे लिए. थोड़ी देर पहले आई आस्क्ड यू आर द बेस्ट इन विच सब्जेक्ट्स. अभी इनफैक्ट तुमने बोला कॉस्टिंग. टेल मी हु इज बेटर देन अस इन कॉस्टिंग. बेटर देन सीए कौन है? सीएमए है बेटर देन अस, सेकंड. फिर तुमने बोला, क्या बोला? एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क एनालिसिस एंड ऑल. हु इज बेटर देन अस? सीएफए. हु इज अ सीएफए? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. उसका तो पूरा फाइनेंस ही डोमेन है. चलो वो भी गया. तीसरा और कौन सा बोला था तुमने? लॉ. लॉ में हु इज बेटर देन अस? देखो कंपनी लॉ में सीएस इज बेटर एंड नॉर्मल लॉज में लॉयर इज बेटर. करेक्ट हो नो? तो वहाँ पे भी हम अच्छे नहीं हो. माय गॉड, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? टैक्स बोला तुमने, करेक्ट ना? क्या लगता है टैक्स में? टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डू यू नीड एनी डिग्री? कैन आई फाइल माई ओन टैक्स रिटर्न? यू गॉट माई पॉइंट? So we have got tax consultants who might be lawyers, who might not even be qualified in for that matter. डिप्लोमा भी हो सकते. They are also doing it. तो वहाँ पे I can't be calling myself an expert ना. एंड एक टैक्स में भी एक लिमिट होता है, क्योंकि हाई कोर्ट और आगे जाने के लिए नीड टू हैव अ लॉ डिग्री. सीए नहीं जा सकता वहाँ पे. समझा मेरा पॉइंट? सो टैक्स भी गया अपने हाथ से. बचा क्या? 2 चीज़ें. कौन से 2? अकाउंट्स एंड ऑडिट. And that is the only 2 subjects where you are considered to be an expert. Baki sub subjects we are having knowledge, but there's a difference between expertise and having great knowledge. So all other subjects we are here, but auditing and accounts we have to be like the topmost, because those are our monopoly. That is our monopoly. वो सिर्फ अपना है, ठीक है? अकाउंट्स में भी चलो आई कांट से पूरा मेरा है, बिकॉज अकाउंट्स भी एनी वन कैन डू ना. आज एक एमकॉम है, अकाउंटिंग तो कर ही सकता है ना वो. ठीक है, ही माइट नॉट नो एवरीथिंग बट ही कैन स्टिल डू इट. बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग, कैन एनीबडी डू इट एक्सेप्ट अ सीए? एनीबडी फॉर दैट मैटर? नो. ओनली सीए कैन डू इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस इज योर डोमेन. राइट? अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग वी डोंट लर्न जस्ट एज सब्जेक्ट. एक अपना अलग सब्जेक्ट है 100 मार्क का, चलो चलो पढ़ना है. वो बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे वैसे. अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स यू आर लर्निंग बिकॉज यू आर बिकमिंग अ सीए एंड यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन दैट. तो ये 2 सब्जेक्ट्स, तुम कभी भी इसको सब्जेक्ट्स मत लो. दिस इज माई प्रोफेशन. You got my point? You like it or you don't like it. You have chosen CA, मतलब you have chosen these 2 things. Right? तो ये importance है वो सब्जेक्ट का जिसका बेस you're going to have in your IPCC. Right? फाइनल में भी है, एंड फिर आर्टिकलशिप में 3 साल करना है, तो obviously you'll become great in that. बट जो बेस है ना, that base is going to happen now. तो जितना बेस पक्का उतना आगे का बिल्डिंग अच्छा. और बेस इधर ऐसे ऐसा हो गया तो तुम सिर्फ सब्जेक्ट के साथ नहीं खेल रहे हो. यू आर प्लेइंग विथ योर प्रोफेशन, विथ योर डिग्री. रिमेंबर दैट, बिकॉज दिस इज वॉट यू गो एंड आस्क एनी लेमैन. जाके रोड पे पूछो, अरे सीए क्या करता है, वो एक ही बोलेगा. ही विल नेवर से सीए टैक्स रिटर्न फाइल करता है, सीए डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग करता है. यू थिंक ही विल से दैट? क्या बोलेगा? ऑडिट. नोबडी नोज क्या है ऑडिटिंग, क्या है ऑडिटिंग. दैट इज ओनली आवर सीक्रेट. सिर्फ अपने प्रोफेशनल सीक्रेट है वो. लेकिन कोई भी बोलेगा सीए डज ऑडिट. एंड दैट्स वाई आई टेल यू, this is how, this is the most important. Now coming to one more point. Accounting करने के टाइम पे तुम CPT से accounting 11-12 से कर रहे हो accounting. Did you ever need knowledge of audit? Right? You don't need knowledge of audit. Auditing means checking the financial statement. Simple words में. Did you need the knowledge? नहीं. But while doing audit, will you need knowledge of accounts? उसके बिना कैसे होगा? Financials check करना है तो वो तो है ही ना. मतलब can I say an accountant and auditor में who is supreme? Who is supreme? Of course auditor, because accountant को उसका knowledge नहीं रहेगा, but auditor को सिर्फ accounts नहीं, ये सब subjects जो हमने बोले ना,
सबका knowledge I need to have. That is what you have in auditing. Okay? And that's exactly why students कभी कभी because वो आधा अधूरा पढ़ते, they don't do properly, they don't know their concepts properly, थोड़ा थोड़ा पास करने के लिए बस बाबा 40 मिल दे, भगवान मुझे 40 दे दे करके निकल जाते, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है. कहाँ प्रॉब्लम होता है? फाइनल में, आर्टिकलशिप में, फुल लाइफ में you'll be like अरे कंसेप्ट ही नहीं आता ऑडिट का. You got it? So that's why take it very seriously. First thing that. Okay? Second thing, of course at times कैसे होता है ना, because ये जो practically करने का मज़ा है ना ऑडिट का, वो बोलने में या फिर you seeing this slides and all, maybe उतना मज़ा नहीं आएगा तुमको. But when you will do articleship, that time you will realize and you can link everything. या IPCC में एक ही प्रॉब्लम हो गया है. What is that? ग्रुप 1 के बाद यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, लेकिन ग्रुप 1 के हार्डली कोई सब्जेक्ट मुझे आर्टिकलशिप में लगते. मेनली आई नीड व्हाट? ऑडिट. एंड वो उन्होंने ग्रुप 2 में डाल के रखा है. सो इफ इट वॉज द अदर वे राउंड एंड यू वर लर्निंग ऑडिट एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, तो यू लिंक विद एवरीथिंग. तो इसकी वजह से वो थियोरटिकल इसलिए लगता है बिकॉज यू हैव नेवर डन इट. P2 और ये सब जो था ना पहले, वी यूज्ड टू डू ऑडिट एंड वी यूज्ड टू लर्न इट. तो वी ऑलवेज हैड दैट बैलेंस, वेरी वेल बैलेंस, एंड वी कुड लिंक एवरीथिंग. यू गॉट द पॉइंट? तो अब वो जो भी है, वी कांट चेंज दैट नाउ. तो हमको जितने चीज़ें वी हैव टू इमेजिन कि अरे प्रैक्टिकल ऐसे कैसे करेंगे इसको, हाउ वुड वी वर्क, वी हैव टू इमेजिन एंड वैसे बेसिस पे वी हैव टू लर्न आवर ऑडिट. समझा? इम्पॉर्टेंस ऑफ माई नहीं, इट्स आवर सब्जेक्ट नाउ. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर सब्जेक्ट यू गॉट? येस? आर यू श्योर? तो इट्स डोंट नीड टू टेल यू वॉट इट इज़. अब एक एक करके जो इसका बैकग्राउंड है, हाउ इट हैपेंड, व्हाट इज़ देयर, एक एक करके विल बी लर्निंग एवरीथिंग. बट बिफोर आई गो देयर, तुम्हारे ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं. कौन से 3? एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एंड ITSM. ये तीनों में एडवांस अकाउंट्स नो डाउट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. यू हैव गॉट ओनली लाइक 3 सब्जेक्ट्स. उसमें से व्हाट हैपेंस इज 2 थ्योरी है, दो इट्स नॉट थ्योरी बट एक्चुअली तो पूरा राइटिंग ही है ना. सो कंसिडरिंग दैट व्हाट हैपेंस, यू हैव टू बी गुड हियर. वाई? ITSM में तुमको भी पता IT में क्या पूछते उनको ही मालूम है. IT आधा तो समझ में भी नहीं आता हमको, करेक्ट हो नो? कितना सिर्फ लर्न करते रहते, कुछ तो भी करते रहते, लेकिन द पॉइंट इज वी आर नॉट सो गुड एट इट. SM इज गुड इनफ बट स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सेकेंड ग्रुप निकलने के लिए यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस इवन टू योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट. इट विल हेल्प यू गो थ्रू. ओके, आई हैव सीन स्टूडेंट्स की लाइक ऑडिट की वजह से भी इट हैपन्स कि लाइक अकाउंट्स और ये मे बी नॉट इतना अच्छा किया है लेकिन निकल गए बिकॉज ऑफ audit. It happens, but of course that can happen with any subject, so I don't consider that a big point, but ऐसा है. ठीक है? So can we now introduce the subject? Yes? So now what is the exact meaning of the word auditing? उसके भी पहले now we have got certain things like we have to understand how auditing evolved. Like हर subject का एक evolution होता है. You know what is evolution, right? History. How it has come. तो एक हिस्ट्री होता है हर सब्जेक्ट का. सो ऑडिटिंग ऑल्सो हैज़ इट्स हिस्ट्री, बट बिफोर गोइंग इन टू ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड योर syllabus, what exactly you have over there. Okay, this is your syllabus. Can you just shift that chair please? Thanks. नीचे रख दिया तो भी चलेगा. Okay, now this is your syllabus. Okay, in this syllabus as you can clearly see, first we have got nature of auditing. We have got 2 chapters. पहले तो तुमको ये बोल दूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट में there's a different way they have divided the chapters. Fine. Has anyone tried to read the institute module? No one has tried. कभी ट्राई नहीं किया या ट्राई करके छोड़ दिया? It's an amazing book. It's got a lot of things, but you know the problem is it's so big, so vast कि what happens after point of time you start losing the link कि क्या बोलना क्या है उनको. ठीक है, you're understanding everything but you're missing the moral of the story. वो problem है. So what we have done, we have split it into chapters. Okay, I have like 2 books. This is my book 1. 2 books I have divided, जिसमें first book में the first 4 chapters as you can see. 4 chapters, nature of auditing, the basic concepts, preparing for audit and internal control. ऐसे मिला के total 7 chapters are there. Therefore you can say topics and 7 chapters in that. जिसका weightage if you will see, कितना है weightage?
8 to 10 marks, 6 to 10, 10 to 12, 6 to 10, it's like that. मतलब हर एक में कुछ ना कुछ तो आता ही एग्जाम में, okay? And in my first book, as you can see the 11th topic, क्या दिख रहा है 11th? Standards on auditing, right? जैसे we have accounting standards, we have got our auditing standards also. तो auditing standards we have got total only, okay, first I'll tell you total standards we have got 45, okay? 45 total standard, जिसमें से IPCC के लिए applicable is only 34, and institute says this is only. अब ये only है क्या? 34 only रहेगा क्या? तो लेकिन क्या कर सकते, सब 34 standards are applicable, तो अपना कैसे रहेगा? The standards also have included in your first book, ठीक है? तो roughly you can say half our time goes for the first book, and second book is the total practical aspects of auditing. पहले हम लोग सब essays, standards, how auditing is done, what it is, वो सब we learn. 5 topics है उसमें, like I said, this is my book 1, उसमें है वो सब. First 4 and मेरे standards on auditing, ठीक है? बाकी सेकेंड बुक में फिर बाकी का सब आएगा, अकाउंटिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑडिटिंग मैंने सेकेंड बुक में रखा है. यू गॉट इट? तो फर्स्ट बुक में हो सकता है तुमको लगे अरे थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इक्वल वेटेज है दोनों बुक्स को. यू गॉट इट? आई कैन नॉट से कि ये ज़्यादा या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो फिर जो भी है वी हैव टू डू इट, वेदर इट्स थ्योरी, प्रैक्टिकल, व्हाटएवर. थोड़ा सा अभी थ्योरी है तो विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू डोंट गेट एंड प्रैक्टिकल जब रहेगा तब तो ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रैक्टिकल विल टॉक अबाउट, सो वो अलग ही रहेगा. सो 2 books वी हैव डिवाइडेड. एज यू कैन सी सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ दिखा? 5, 6 and 7, राइट? वो मिलके यू हैव 18 to 20 marks, बट उससे भी ज़्यादा वेटेज my standards on auditing, you saw 15 to 30 marks comes from there. In fact तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. 20 marks का क्वेश्चन होता है, 5 marks 4 questions. वो चारों के चारों क्वेश्चंस कम फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, और स्टूडेंट सबसे कम क्या करके जाते? स्टैंडर्ड्स, बिकॉज 34 है, कौन करेगा, बस थक जाते. फिर क्या होता उसमें, तो वी हैव टू मेक द स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रेंथ. ओके, वो कैसे बनेगा वो धीरे धीरे तुमको खुद को ही समझ जाएगा. एसेज हैव टू बी परफेक्ट, बिकॉज वो एक ही जगह है जहाँ पे यू विल बी एबल टू ओवरटेक योर अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पे दे बिकम लेजी एंड यू हैव टू ओवरटेक देयर. बाकी सब तो अच्छा करना ही हमको, बट एसेज वी हैव टू मेक आर स्ट्रेंथ. You got it? Because there I will be getting that 60 plus I'm aiming for. I guess we all are aiming for at least exemption, right? तो उसके लिए essays are the key, क्योंकि वही question compulsory होता है. Got it? Second, then we have got बहुत ही अच्छा question of auditing. First question compulsory, then you have to answer any 5 out of 6. 20 मार्क हो गए. 5 out of 6 में 16 मार्क्स के 5 questions. So we have total 80 marks, 100 मार्क्स का पेपर. तुम्हारे सारे पेपर्स ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट के. तो उसमें जो होता है ना, द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. अब करेक्ट और इनकरेक्ट तो पूरा स्कोरिंग हो गया ना. 8 क्वेश्चन में 2-2 मार्क के, यू हैव टू गेट रीजंस ऑल्सो, बट तो भी इट्स वेरी स्कोरिंग. 20 मार्क्स ऐसे इसके ले लिए, 16 मार्क्स किसके ले लिए? करेक्ट इनकरेक्ट, वो आना ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सो मच ऑफ प्रैक्टिस ना, वो आ ही जाएगा तुमको. फिर आता है तुम्हारा कंपनी ऑडिट, विच इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद का पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड, एनीथिंग कैन कम एनीवेयर. स्पेसिफिकली वाउचिंग वेरिफिकेशन के 4-4 मार्क के आते हैं. शॉर्ट नोट से क्लास क्वेश्चन था 4-4 मार्क्स के, एंड दे वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस. तुम अगर अपना बुक एकदम अच्छे से करो, ओके? मैंने बुक में तुम्हारे रिसेंट एग्जाम मतलब इंक्लूडिंग योर May 16 का पेपर, ओके? सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है तुम्हारे बुक में. PM इज देयर, अपने अपडेशंस है, एंड ऑफ कोर्स सिर्फ बुक के बेसिस पे नहीं होगा. व्हाट विल बी हाईलाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी टेक्निक्स, चार्ट्स विल बी हैविंग, ऑल दैट टुगेदर विल बी मेकिंग इट परफेक्ट. डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज लाइक माई बेस, एंड दिस बेस इज 80% डन. इसके आगे 20% लिखने का है तुमको, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग 80, राइटिंग 20, टुगेदर 100, यू आर प्रिपेयर्ड फुली. अंडरस्टूड? जितना हो सके आई हैव टू ट्राई टू कवर इट इन क्लास. बट यू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट लाइक योर IT और SM जिसमें छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स हैं, ख़त्म तुम्हारा सिलेबस. दिस वी हैव गॉट गुड 22-23 चैप्टर्स, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी कि कंप्लीट इट इन क्लास, राइट? इफ आई हैव अ चॉइस इज 1,
सिर्फ कंप्लीट करते जाओ क्लास में एंड फिर लर्निंग क्लास में करो, कंसेप्ट को उड़ा दो, मग अप करो एंड फिर ख़त्म हो जाएगा क्लास में. मग अप तो कर लेंगे लेकिन आंसर्स यू थिंक विल कम लाइक दैट. और एप्लीकेशन ओरिएंटेड फिर क्या होता है एग्जाम में, यहाँ से यू फील वाओ मैम ने सब इधर लर्न करवा दिया हमको, एंड बाद में जब यू विल गो एंड यू विल राइट इन द पेपर तो योर मगिंग विल नॉट कम. दे विल आस्क यू एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन में समझता है ना, सिचुएशन को यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, एंड दैट्स वाई आई टोल्ड यू ना थोड़ी देर पहले ऑडिटिंग में स्कोर क्यों कम होता है. आई डेंट गिव यू द आंसर दैट टाइम, द आंसर इज नाउ. ये एक ही सब्जेक्ट है तुम्हारा जहाँ पे यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, बाकी सब में जो है वो है ख़त्म. देखो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में कुछ ना कुछ तो करके आ ही जाते ना हम लोग. अकाउंट्स में कुछ तो करेंगे ना. कॉस्टिंग एफएम यू हैव टिपिकल टाइप्स ऑफ सम्स, वही करना है तुमको. टैक्स में कितना प्रैक्टिस कर करके क्या एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स ओनली यू आर डूइंग. एवरीथिंग यू कैन डू समथिंग राइट, बिकॉज यू हैव अ सेट पैटर्न दैट. एंड लॉ ऑल्सो, ये लॉ है, ये सेक्शन है, ख़त्म. द ओनली सब्जेक्ट जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व है, बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज इन्वॉल्व है, एसेज का नॉलेज इन्वॉल्व है. इज दिस तो अप्लाई नहीं कर पाते बच्चे. ओके, सो ईदर इट्स लाइक 30-35 डेज में, 40 डेज में भी इफ़ आई कंसिडर, कंसेप्ट्स को ही टाइम कम पड़ता है. यू गॉट माई पॉइंट. इट इज़ सो मच सो वास्ट, और उसको शॉर्टकट कर दिया तो फिर वॉट विल हैपन, यू विल फील अरे आधे कंसेप्ट पढ़ा दो और वो इतने अच्छे पढ़ाओ, स्टूडेंट्स आर लाइक वाओ सब आता हमको, सब आता. और जाकर जब पेपर में यू विल सी द पेपर ना, यू शुड स्माइल एंड यू शुड रिमेंबर दैट अरे मैंने ये सब किया है. नॉट लाइक ओ माई गॉड ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, अरे मैंने जो लर्न किया था वो तो आया ही नहीं. यू गॉट इट. सो यू हैव, वी आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं करना है. ओके, we'll try to see 60 to 70% we'll complete in class in terms of your learning. I am saying बाकी every day at least you can give me half an hour. Half an hour is okay. You can give me that much after class. सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा तो दे सकते हैं ना टाइम. बस उतना भी दे दिया ना, जितना आज हुआ उतना जाकर रिवाइज करो. डोंट लेट इट पाइल अप. वो जब पाइल अप हो जाता है यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. वो एक चीज़ को यू लाइक काइंड ऑफ फिक्स इट एंड लॉक इट एंड कीप इट, कि जितना आज हुआ उतना मुझे करना है, बस उतना ही करना है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर देन दैट. यू विल सी विद इन दिस स्पैन ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस इज ओवर. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. आर यू अवेयर, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था जिसमें ये बोला था कि 24 आवर्स में अगर तुम कुछ भी रिवाइज करते हो, वट एवर यू हैव लर्नड, यू विल बी रिटेनिंग 70% ऑफ इट. और अगर तुम रिवाइज नहीं करते हो तो यू विल बी रिटेनिंग ओनली 25%. And I am not saying, this is science, proven. What is worth then? वो आधा घंटा देना worth है ना, instead of losing out on that 40% chance that I have, 40 तो कम से कम. This is how you have to work on it. समझ में आया? तो syllabus का got the thing, 2 books are there. First book में basic concepts and essays, second book total practical oriented. Okay? Any questions so far? कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी anything? तुमको अपने नोट्स के अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. थोड़ा बहुत अगर करना है तो PM यू कैन डू. योर प्रैक्टिस मैनुअल प्रीटी मच गुड, उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. मैंने मैक्सिमम तो कवर कर ही दिए, बट स्टिल यू ऑलवेज हैव दैट थिंग कि और क्या देखना है. तो बस PM को छोड़ के और कुछ भी मत देखो. ओके, एनीथिंग? यस, मॉड्यूल या it's okay. The module you are saying now, whether we should refer it or not, I said not at all. You don't need to. Okay, PM you're doing now, plus our notes you're doing, it's more than enough. More than enough. Now as I was telling you, Rishikesh got 86, which is a very very good score that we have. Okay, he has done only that. He's done only our notes. Thoda bahut PM he did. Okay, but maximum notes, because when you'll go to the PM you'll realize that maximum we have already covered. मैक्सिमम मतलब आई एम सेइंग आराम से 80% के ऊपर. सो देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन. हाँ मैंने PM किया है. दैट्स वाई आई डोंट टेल द स्टूडेंट्स कि मत करो. आई टेल देम करो, सो दैट यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन. मैंने इंस्टीट्यूट का भी कुछ किया हुआ है, द ओनली रीजन. बाकी आई नो कि इसमें भी सब कुछ हो जाता है, बट स्टिल. ओके, और कुछ? सीरियस बच्चे हो,
बहुत सीरियस है, फर्स्ट डे है, धीरे धीरे रंग रंग दिखेंगे हमारे, करेक्ट ना? आई होप दिखेंगे। ये तो ऐसे सीरियस ही बैठे रहेंगे। कैन आई गो फर्दर? यस, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, राइट? शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो वंस? हाँ, यस, यू नो मी और यू डोंट नो मी? डोंट नो ना, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? ठीक है. So well, as you know, I'm Neha Lathi Mittal. I have cleared my CA like 10 years back. Okay, after clearing my CA, I was, by the way, merit throughout. Okay, right from 12th standard, my first year, second year, third year, MCom, everywhere I've been in the university merit or somewhere, you know, or in the board list. Even in CA, in my PE2, I was third all over India. And I was 5th in my CA final all over India. I was first in Pune, and that's about me. After doing my CA, I have also done my CFA, I have done my CISA, I have done my ESA, okay? So I've done all of that, and like I said, everywhere I've been throughout a topper, okay? So that's about me. I love teaching, okay? I'm here because of that only. You must be knowing, once you're in the merit, you get so many offers from everywhere, yes? But I chose to come in this profession because this is my passion, okay? And I've been teaching like now almost like you can say 8 to 9 years I've been teaching, and my core subjects are accounts and audit, okay? So those are my core subjects. Fair enough? Anything more? That's it, okay? Now, coming to syllabus हो गया, अब my next part, okay? हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग. अब यहाँ से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ओके? अब ये हिस्ट्री तुमको लाइक यू नो बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, यू विल नॉट नो दिस. बहुत टाइम पहले, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सेंचुरीज एंड सेंचुरीज बैक, जब किंग्स एंड किंगडम्स का ज़माना था, राइट? उस टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑडिटिंग हैड हैपन. ऑडिटिंग बेसिकली मीन्स चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स. एक सिंपल वर्ड्स में, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मच. तो उस टाइम पे ऐसे था, दिस वर्ड ऑडिटिंग, कहाँ से आया वर्ड ऑडिट? तो दिस वर्ड इज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑडायर. द वर्ड इज ऑडायर विच मीन्स टू हियर. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हियरिंग, आई मीन सुनने के बेसिस पे कैसे ऑडिट होता है? तो इसका जो ओरिजिन है वर्ड का, वाई इट्स कम फ्रॉम देयर, तो उसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है? तो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि बहुत पुराने ज़माने में जब वी हैड दिस किंग्स किंगडम्स वाला टाइम ना, तो एक किंग होता था. दिस इज़ आ किंग, छोटा प्रिंस दिख रहा है लेकिन ठीक है, ही इज़ अ किंग राइट नाउ. सो दिस किंग, उनका एक यू नो मीटिंग्स होते थे लाइक उस टाइम पे. तो वी हैड दिस एंटायर किंगडम विच वुड बी देयर. अब किंगडम के सामने क्या होने का? दे हैड दिस वन पर्सन हु यूज्ड टू बी रीडिंग द एंटायर अकाउंट्स. तो अकाउंटेंट जो उस टाइम पे था ना, लाइक मुनीम जी बोलने के उस टाइम पे, ठीक है? तो वो कैसे द किंग यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. तो ही हैड टू आंसर देम ना कि मैंने कहाँ स्पेंड किया है, क्या स्पेंड किया है, हाउ आई हैव डन गुड फॉर यू ऑल. वो सब वो किंग को दिखाना पड़ता था. तो दिस अकाउंटेंट यूज टू शाउट जोर जोर से ये लोगों के लिए कि लाइक ऐसा, इधर पैसा लिया, उधर पैसा लिया, इसको दिया, उसको दिया, वट एवर, नो वी स्पेंड हियर, वी स्पेंड देयर. तो ऐसे चलने का. और फिर कॉर्नर में देयर इज टू बी वन पर्सन हु इज टू स्टैंड एंड हु इज टू हियर एवरीथिंग, ओके? वो सुनता रहता, बीच में रोकता. फिर अरे अकाउंटेंट, तूने अभी ये बोला, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, कैन यू शो मी सम एविडेंस टू चेक दैट. देन इज टू क्रॉस चेक, इज टू क्रॉस वेरीफाई, इज टू क्वेश्चन दैट पर्सन, ठीक है? बिकॉज ये लोगों को देखकर तुमको लगता है इनको कुछ समझता रहेगा. I mean, तुमको खुद ही समझ गया, कुछ नहीं समझने वाला उनको, राइट? तो दिस पर्सन हु इज टू स्टैंड इन द कॉर्नर, ओके, दिस किंग, दिस पर्सन हु इज टू रीड, एंड ये अपने सारी जनता, हु इज द ऑडिटर आउट ऑफ द फोर? द लास्ट वन, व्हाट ही यूज्ड टू डू? हियर, राइट? वो पूछता था, ये आंसर देता था, ही यूज्ड टू हियर, एंड देन बेस्ड ऑन दैट एंड ऑफ द सेशन ही वुड गिव हिज ओपिनियन कि हाँ सब कुछ लुक्स फाइन, सब कुछ ठीक है. एंड उस टाइम पे देन दैट सभा यूज टू क्लोज, मतलब वो टाइम पे जो भी था. तो दिस पर्सन इज वेयर ऑडिटिंग फर्स्ट स्टार्टेड, किंग्स एंड किंगडम्स. देन केम व्हाट? ये तो किंग्स एंड किंगडम्स का ज़माना छोड़ दो. नाउ टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट एवर हैपेंड? फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, यस, सोल प्रोप्राइटर के भी पहले, बिजनेस होने से पहले क्या होने का? फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ था?
हाँ, तुमको आंसर डालना पड़ता ना मुंह में. एक्सचेंज बोला तो बाटर एक्सचेंज आ रहा. ठीक है, बाटा में व्हाट वाज द केस? इट वाज गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, राइट? तो वही क्यों नहीं चला, वो क्यों बंद हो गया? बिकॉज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आने के. ओके, इट वॉज सच अ लेम वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि समझ लो एक बंदे के पास कुछ मैंगोज है, 2-4, एक के पास बफेलो है, और उसको चाहिए मैंगोज, इसको चाहिए बफेलो, एक्सचेंज खत्म. आई मीन कम ऑन, द बफेलो इज मोर वर्थ. लेकिन वो तभी नहीं समझने का उनको. फिर धीरे धीरे उनको समझने लगा, रही ये वर्थ ज़्यादा है, आई मीन ऐसे कैसे एक्सचेंज करे, चल आई नीड मोर मैंगोज फॉर दिस. तो थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग लाइक दैट. लेकिन फिर भी हर चीज़ को तुम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना. मैंगोज एंड बफेलोज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाउ कैन यू एक्सप्रेस इट इन ईच अदर? फिर आया अ कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ मेजर. व्हाट वाज दैट? मनी. मनी आया, फिर मालूम था अभी बिजनेस तो बढ़ने वाला है. फिर मनी आने के बाद व्हाट हैपेंड, बिजनेस में ग्रो होने लगा. फर्स्ट टाइप ऑफ फिर क्या आया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटर. अब जो अकेला है बंदा सोल प्रोप्राइटर, खुद ही बिजनेस कर रहा है, खुद का ही सब कुछ है, उसको मालूम है उसका प्रॉफिट सब कुछ है. नाउ डज ही नीड समवन हु विल कम एंड टेल हिम तूने इतना प्रॉफिट क्या? बोलेगा एक तो तुझे फीस दूँ और तू ही मुझे बोलेगा मैंने कितना प्रॉफिट किया, जो मुझे ऑलरेडी मालूम है. व्हाट इज योर वर्क हियर ना, क्या बोलने का? एंड देयर इज नथिंग टू डू फॉर द सोल प्रोप्राइटर. तो इतना कुछ इंपॉर्टेंस लगा नहीं उस टाइम पे. फिर सेकेंड फॉर्म आया. व्हाट वाज सेकेंड फॉर्म? पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का बेसिक डेफिनेशन बोलता है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. बोलते हैं ना, बट तुमको लगता फुल ट्रस्ट रहता है एक दूसरे के ऊपर? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो अभी समझ लो देयर आर 4 पार्टनर्स. हाँ, ध्यान से सुनना. 4 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स सिटिंग इन ऑफिस, 2 पार्टनर्स गोइंग आउटसाइड फॉर गेटिंग बिजनेस. नाउ यू टेल मी इन दिस सिचुएशन, विल द 2 पार्टनर्स आउटसाइड फील कि अंदर कुछ इधर गड़बड़ कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के? लगेगा उनको? इनको लगेगा अरे वो उधर जाकर गड़बड़ कर रहे हैं. लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. तो ट्रस्ट किधर गया तुम्हारा, राइट? तो दे रियलाइज्ड कि ऐसा तो नहीं चलेगा बाबा, वी नीड समवन हु विल चेक द फाइनेंशियल्स एंड ठीक से सब प्रॉफिट लॉस देख के हमको बोले कि दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट. तो फिर वो चारों बैठ के डिसाइड करते कि अरे वी विल हैव एन ऑडिटर जो आकर चेक करेगा. तो वो 4 पार्टनर्स ABCD है, उसमें से A हैज़ लाइक यू नो अ CA वाइफ. तो बोलता अरे है ना अपने घर पे मेरी वाइफ है ना, शी विल डू इट. CA करेगी वो आराम से. मिसेज A विल डू इट. चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? एग्जैक्टली, शी विल बी बायस्ड. एंड ये तीनों भी बोलेंगे नहीं नहीं वो रहेंगी CA एंड ऑल दैट, मेरिट रैंकर है, ठीक है, बट शी इज़ योर वाइफ ना. नहीं बाबा, शी विल बी बायस्ड. हमको कोई और थर्ड, भलता ही थर्ड आदमी चाहिए, हु विल कम, हु हैज़ गॉट नो कनेक्शन विद एनी 4 ऑफ अस एंड हु विल डू इट. मेक सेंस? With the person who has no connection with any of us, he is called an independent person, not dependent, not biased. ना उसको अच्छा बोल के कुछ मिलने वाला है, ना बुरा बोल के कुछ मिलने वाला है, तो उसको कुछ बायस का तो सवाल ही नहीं आता ना. So then they realized what? कि बाबा इंडिपेंडेंट कोई चाहिए. तो पार्टनरशिप फर्म में फिर ऑडिट्स शुरू हो गए. ठीक है, फिर पार्टनरशिप के बाद व्हाट केम? व्हाट केम आफ्टर पार्टनरशिप फर्म्स? कंपनीज. कंपनीज में सबसे खास बात क्या है? There is a separation of ownership and management. That is the biggest thing in a company. जो पैसा डाल रहे ओनर्स वो मैनेजमेंट नहीं कर रहे, और जो मैनेज कर रहे हैं उनका पैसा नहीं लगा हुआ है या थोड़ा बहुत लगा रहेगा, राइट? तो दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लाइक सॉर्ट आउट करने के लिए ओनली वन थिंग इज देयर. व्हाट इज देयर? बाबा ऑडिट हो जो चेक करे एंड कीप्स अ चेक ऑन मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड ओनर्स को उनका राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिले. अगेन द पर्सन हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. तो अगर वो MD की वाइफ बोलती है आई बिकम अ CA, चलेगा? नहीं चलेगा. तो देयर अगेन देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व. एंड ऑडिटिंग गेन्ड मैक्सिमम इंपॉर्टेंस आफ्टर विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी. वो तो बोलने की बात ही नहीं है, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं बोला है कि ऑडिटिंग इज कंपल्सरी, बट कंपनीज एक्ट में बोला है ऑडिटिंग इज कंपल्सरी. ओके, नाउ कंपनी स्टार्टेड डूइंग ऑडिटिंग. यू मस्ट बी नोइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, हिस्ट्री में पढ़ा था स्कूल में. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग बिग टाइम, एंड उसी टाइम पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग बिग टाइम. ओके, as far as my Indian scenario is concerned, today in India, auditing has grown ever since kings and kingdoms. वो तो है ही. In fact, you would be surprised to know that even in Mahabharata they have a mention of auditing somewhere. Not exactly the word auditing, but checking of the accounts. ऐसा करके एक specific mention है.
यू गॉट इट. अर्थशास्त्र बोलते हैं ना हम लोग, वो जो इकोनॉमिक्स का एक ये था पूरा पिछले इसमें, उसमें भी रेफरेंस है ऑडिटिंग का. सो इट्स सो ओल्ड. फिर उसके बाद वंस वी गॉट इंडिपेंडेंट, आवर इंस्टीट्यूट वॉज फॉर्म्ड. विच ईयर वी गॉट इंडिपेंडेंट? 1947 ना. आई हर्ड 6. किसने बोला 6? हाँ. एंड व्हेन वाज आवर इंस्टीट्यूट फॉर्म्ड? क्या बात है, 19, हाँ 49. आई गेस यू नो दिस. हाँ, यू शुड नो इट. सीए बनने को जा रहे, अपने इंस्टीट्यूट का मालूम नहीं, कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है मालूम नहीं. करेक्ट. हाँ, तो उस टाइम से लेकर अब तक आवर ऑडिटिंग हैज़ चेंज बिग टाइम. सीएस तो बन ही रहे हम लोग, उसमें नाउ द ऑडिटिंग इज सच दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी लर्न, स्पेशली द एसेज, आर ग्लोबल एसेज. मतलब IFRS तो तुमने अभी अभी सुना रहेगा ना. IFRS, इंड AS, मतलब वे गोइंग ग्लोबल. तो एसेज तो ऑलरेडी ग्लोबल ही है. पहले अलग था, पहले वी हैड SAP, फिर वो AS बना. अभी जो एसेज यू लर्न, दे आर द सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो अपना नॉलेज कोई लोकल नॉलेज नहीं, अपना लेवल इज ग्लोबल नॉलेज. ओके, दैट इज हाउ दिस इज डन. तो ऑडिटिंग का समझा अभी. तो कहाँ से शुरू किया? किंग्स किंगडम्स. कहाँ पे पहुँचे? अभी ग्लोबल, वन लेवल, ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट हैज़ बिकम. एंड लेट मी टेल यू, ऑडिटिंग इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका सीक्रेट्स ओनली वी आर नोइंग. गेट दैट क्लियर. हर प्रोफेशन का ही कुछ सीक्रेट्स होते हैं, प्रोफेशनल सीक्रेट्स. राइट और नो? अकाउंट्स इज नॉट अ सीक्रेट, बिकॉज वो मैनेजमेंट को करना ही पड़ता है. दे डू ना अकाउंटिंग, हम सिर्फ चेकिंग करते. तो आर प्रोफेशनल सीक्रेट्स आर व्हाट? ऑडिटिंग. वॉट एवर विल बी लर्निंग आर द प्रोफेशनल सीक्रेट. दुनिया को पता चल गया हम चेकिंग कैसे करते, तो वो तो प्रिपेयर्ड ही रहेंगे ना सब करने के लिए. सो नो, दैट इज आर सीक्रेट. क्लियर? सो कैन आई गो टू द डेफिनेशन? डेफिनेशन एक चीज है जो तुमको एज इट इज लर्न करना पड़ता है. ओके, सी द डेफिनेशन. एंड ऑडिटिंग इज एन independent examination. Independent ka meaning, what is it? Independent, not dependent is right what you're saying, but something more? Very good. Unbiased, right or no? So it's like unbiased you are. Okay, anyways. Independent examination of what? Financial statements of any entity. अब मैंने बोला independent examination. एक example we already took of independence. कौन सा एग्जाम्पल? अभी बोला था, इंस्टीट्यूट का नहीं. अब भी क्या अभी भूल गए? हाँ, वाइफ. लड़कों को याद आ गया राइटली. हाँ, ठीक है. सो मिसेस ए वाज गोइंग टू डू ना ऑडिट, वो पार्टनर की, फिर MD की वाइफ. अब वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ इंडिपेंडेंस. टेल मी वेदर योर इंडिपेंडेंस इज हैम्पर्ड. चलो मान लो तुम CA बन गए. बनते ही CA, लाइक आई वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस एंड ऑल दैट. फुल जोश में, फुल एथिक्स एंड ऑल लर्न करके CA तो बन गए. उसके बाद देन अभी काम कौन देगा ना हमको? नए हम लोग. तो हम डैड के पास जाते हैं अपने, पापा मुझे काम दो, आपके बिजनेस का ऑडिट मुझे दो. करेक्ट? कैन आई टेक द वर्क? वाई आई कांट टेक द वर्क? वाई? बिकॉज आई कांट बी इंडिपेंडेंट. क्योंकि अगर पापा ने कुछ मिस्टेक भी किया है बिजनेस में, व्हाट विल आई टेल? पापा ये रॉन्ग है, तो व्हाट विल ही से? चुप बैठ, जितना बोला उतना कर. गया अपना सारा डिग्री गया, एथिक्स गया, एवरीथिंग गॉन, इंडिपेंडेंस तो फॉरगेट ओनली. करेक्ट? एक चुप एंड आई एम चुप, कुछ नहीं. ठीक है? तो दैट्स व्हाट. इफ आई टेल माई डैड कि डैड आई एम अ CA, तुम ऐसे मत करो, ये रॉन्ग है. पापा क्या बोलेंगे? मैं CA का बाप हूँ, चुप बैठ, कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको. हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंस गया. यू कैन नॉट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट. रिलेटिव्स का ऑडिट नॉट अलाउड. चलो आगे. Examination of financial statements of any entity. Financial statements में क्या क्या आता by the way? Balance sheet, P&L, cash flow, notes. Very good. आने वाला आगे. Okay? Irrespective of its profit orientation, size or legal form. Now what does this mean? That entity could be profit oriented, like a company. It could be non-profit oriented like NGO. but तो भी सबका ऑडिट इंपॉर्टेंट है. इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, हर एक को चेक तो करना है ना हम जा कहाँ रहे, व्हाट इज हैपनिंग, राइट. तो इसके लिए इट इज़ नेसेसरी. एंड लीगल फॉर्म, तुम इंडिविजुअल हो, तुम पार्टनरशिप हो, तुम कंपनी हो, करेक्ट, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हर एक को लगता है ऑडिट.
ठीक है, everyone needs it. So irrespective. But the point is, why am I doing audit? See, irrespective of size or legal form. कितना भी छोटा हो बड़ा हो, we need it. But like I said, why am I doing audit? When it is done to express an opinion. Now you will be thinking, ये opinion क्या है? What is this opinion? Yes? Sorry, little louder. Right. You're reporting your opinion. But my point is, why are you giving an opinion? Can you tell me the difference between fact and opinion? Yes, the girl. Facts cannot be manipulated, but opinion Can be manipulated. Huh? I can manipulate. cannot be manipulated. Okay. But don't you think like, yeah? Opinion differs from person to person, whereas fact means the same irrespective of Okay. So can I say fact is the same thing, right? So if I tell you like, like let's say white color paper. White is what? A fact, correct? Right? But then in my opinion, my notes are very good. I'm saying that. It's my opinion. समझ में आया? Now the point is, ये जो fact and opinion चीज़ होता है ना, auditor always gives an opinion. फिर आता है दिमाग में auditor fact क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि कभी भी auditor fact बोल ही नहीं सकता. सबसे पहले financial statements बनाता कौन है? Auditor बनाता है? नहीं, बनाते हैं मैनेजमेंट. मैं तो सिर्फ जाकर चेकिंग कर रहा हूँ. आई एम ओनली चेकिंग. सो आई कांट टेल यू फॉर अ फैक्ट कि दिस इज एकदम करेक्ट. इफ आई एम सेइंग दिस इज फैक्ट में करेक्ट, मतलब तुम बोल रहे हो 1 रुपये का भी मिस्टेक नहीं इसमें. करेक्ट का मतलब 1 रुपये का भी मिस्टेक नहीं ना, फिर नहीं चलता है. ओपिनियन में हाँ, ओवरऑल ट्रू एंड फेयर है बाबा. सीधा वर्ड, दोनों में फ़र्क है. ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रू एंड करेक्ट ऑडिटर दे सकता है, ट्रू एंड फेयर दे सकता है. ऑफ कोर्स ट्रू एंड फेयर, बिकॉज ट्रू एंड करेक्ट व्हेन आई से, आई एम लाइक बाबा 1 रुपये का भी मिस्टेक नहीं चलेगा. हाउ कैन आई से दैट? कितना भी चेकिंग कर लो, ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है. सो आई कैन ओनली से बाबा ट्रू है, जो हुआ है दैट इज ट्रूली हैपन, मतलब व्हाट आई कर लाइक इट्स लाइक रियली हैपन एंड फेयरली शोन इन योर फाइनेंशियल्स. एंड द मोमेंट आई से फेयर, इट बिकम्स एन ओपिनियन. Because some things may be fair according to you, some things may be unfair according to you. It's an according wala fact. So it becomes person to person, it can be different. Okay? So auditor always gives only an opinion. That is what I am trying to say. I hope it's clear. और दूसरों के काम के ऊपर हम opinion नहीं दे सकते. Right? अपने काम पे शायद I can say this is correct बाबा, बैलेंस शीट पूरा राइट है, मैंने खुद बनाया है, सब कुछ एक एक आइटम राइट है. बट दूसरों के काम के ऊपर I only can give an opinion. बिकॉज वो उसका काम है, मेरा नहीं है. ठीक है? सो कैन वी नाउ गिव द डेफिनेशन? व्हाट इज इट? इट इज एन independent examination of financial statements of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when it is done to express an opinion. Over. But ये definition थोड़ा सा narrow है. जो अभी हमने बोला, we are so restricted, we are just saying it is financials, checking of what? Financial statements, right? Only for the purpose of forming an opinion. It is very narrow. वो मेरा traditional definition है, लेकिन अपना अभी एक definition और आगे चला गया. Okay, see the next definition, which is advanced definition. It is a, क्या words है? Systematic and independent examination. दोनों में फ़र्क है. उधर क्या बोला था? सिर्फ इंडिपेंडेंट. नाउ आई एम सेइंग सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट. क्या फ़र्क है? सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट? एक स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी चीज़ को अच्छे से करना, राइट? द सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट. इंडिपेंडेंट तो रहना ही है. दैट इज़ लाइक अपना ऑडिटर का नाम ही आज इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो गया है. द इंडिपेंडेंस एंड द ऑडिटर आर स्टक विद ईच अदर नाउ. ठीक है? सो वो तो कन्फर्म है. ऑफ वॉट? ऑफ 5 थिंग्स. क्या 5 थिंग्स? डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस एंड स्टेटमेंट्स. 5 points which I remember as drops. Drops. क्या ड्रॉप्स है? डेटा. तुम डेटा चेक कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हो, राइट? वो क्या है? ऑपरेशंस चेक कर रहे हो टू सी कि प्रॉफिट्स हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है. परफॉर्मेंसेस, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो भी चेक कर सकता है ऑडिटर. एंड स्टेटमेंट्स अपना फाइनेंशियल्स तो चेक करता ही है ना. तो पिछले इसमें आई वॉज ओनली सेइंग व्हाट?
स्टेटमेंट्स. अब मैं बोल रही हूँ नहीं ड्रॉप्स, 5 चीज़ें आई कैन चेक. ठीक है, सो इज इन दिस वाइडर डेफिनेशन. वैसे प्रैक्टिकल कौन सा डेफिनेशन है, फर्स्ट और सेकेंड? ऑफकोर्स द सेकेंड वन. अगर फर्स्ट होता तो सेकेंड आता ही नहीं ना, राइट हो ना. बड़ा डेफिनेशन है इसलिए स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट लिखने के टाइम तुमको दोनों लिखना है. ठीक है. सो नाउ I'll tell you one simple example, right? I was telling you कि financial audit is main. Of course, financial audit main and that will always remain main. But there are some other audits also which are non-financial in nature. Like, कभी सुना है अलग type of audit? अच्छा, तुमने कौन से audit सुने हैं? Systems audit, एक. Bank audit, statutory audit, internal audit, क्या बात है, काफ़ी सुना है. Tax audit, VAT audit, हाँ? ट्रस्ट का ऑडिट, एंटिटीज का ऑडिट मत बोलो, टाइप्स ऑफ ऑडिट बोलो. हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट, क्या बात है. और देखा, काफ़ी तुमको पता है. इसमें से फाइनेंशियल एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बैंक ऑडिट में फाइनेंशियल चेक करते, राइट. बट व्हाट अबाउट, हाँ, कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट में आई स्पेसिफिकली चेकिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ठीक है, हो गया ना रिकॉर्ड्स वाला पॉइंट. देन आई वॉन्ट टू सी लाइक परफॉर्मेंस, उसने बोला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, करेक्ट. इट्स CSR. व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका भी ऑडिट होगा, सो दैट यू नो यू कैन सी परफॉर्मेंस वाइज तुम कहाँ पे हो, कैसे हो. ठीक है. इनफैक्ट एक टाइप ऑफ ऑडिट होता है एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट भी है जिसमें कितना एनर्जी कंजम्पशन किया कंपनी, कहाँ पे वेस्टेज किया, दे चेक दैट. नाउ यू टेल मी दिस काइंड ऑफ एनर्जी ऑडिट, इज इट फाइनेंशियल? नॉट एट ऑल. फिर एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, तुम कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, कहाँ पे सेव कर सकते हो पोल्यूशन क्रिएट करना, मतलब वे यू विल नो सेव ऑन द पोल्यूशन. दोज काइंड ऑफ ऑडिट्स. ओके. जर्मन बेकरी का केस मालूम है? जर्मन बेकरी पुणे में क्या हुआ था? देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट, राइट. नाउ वो ऑफ कोर्स दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जर्मन बेकरी का अगर लेआउट देखेंगे ना हम लोग, तो मेन शॉप, ओके, द मेन बेकरी, एंड साइड में ऐसे दे हैड दिस L शेप का विच वॉज इलीगली एक्सटेंडेड. अपने इंडिया में तो चलता है ना, जिधर दिखा जगह घुस गए, करेक्ट. तो ऐसे घुस गए थे वो. और वहाँ पे उन्होंने ऐसा वॉल बना लिया, बिकॉज इट वॉज अ क्या बोलते, कॉर्नर पीस था उनका. ठीक है. तो द बॉम्ब विच वॉज प्लेस्ड समवेयर इन दैट यू नो दैट इलीगल एरिया. तो जब ब्लास्ट हुआ, सम पीपल डाइड एंड कॉम्पनसेशन क्लेम किया फिर अपने जर्मन बेकरी ने, इवन अपने गवर्नमेंट को, कि हमारे इधर हुआ है. तो गवर्नमेंट डिड व्हाट वी कॉल एज स्ट्रक्चरल ऑडिट. स्ट्रक्चरल ऑडिट, कि वो स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में मालूम पड़ा रही इसने तो इलीगल अतिक्रमण किया हुआ है, करेक्ट. तो दे लाइक अरे इलीगल इसमें तुम्हारे यहाँ पे बॉम्ब आता है, एंड देन समथिंग हैपन्स एंड यू आर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन. इफ आई पे यू कॉम्पनसेशन, आई एम एक्चुअली प्रमोटिंग और आई एम सपोर्टिंग दैट इलीगल थिंग ना. बोला नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, करेक्ट है ना गवर्नमेंट. लेकिन ये जो ऑडिट हुआ था, विच ऑडिट? स्ट्रक्चरल ऑडिट. आई मीन इट्स समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट. ब्रिज कभी कोलैप्स हो जाता है, राइट. तो पूरा ऑडिट होता है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट, कि क्या हुआ, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, एंड सब प्रैक्टिकली चलता है. यू गॉट माई पॉइंट. तो ऑडिटिंग वो कौन से ज़माने में बोलते थे फाइनेंशियल, हम लोग बहुत आगे निकल गए. हाँ, वो अलग बात है, CAs में नॉट बी डूइंग ईच एंड एवरी टाइम. अब स्ट्रक्चरल में हमको समझने वाला है क्या कुछ? यू थिंक वील अंडरस्टैंड? कुछ नहीं समझने वाला, दैट इज इंजीनियर का काम. लेकिन ऑडिट तो अलग अलग है ना. गॉट द पॉइंट. नाउ यू आर चेकिंग ड्रॉप्स फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, राइट. द पर्पस कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एन ओपिनियन, इट कुड बी गिविंग योर रिपोर्ट, एनीथिंग. ठीक है. बट द डेफिनेशन इज स्टिल नॉट ओवर. आगे गया, व्हाट एल्स इट सेज? In any auditing situation, auditor recognizes the proposition, the facts, the situation. और वो facts देखकर what he does? He collects evidence. Okay, evidence मतलब proof, because we need to have proof of everything. Formulates his judgment, and which is given through an audit report. बड़ा डेफिनेशन है ना, फिर से ट्राई करते. व्हाट इज ऑडिटिंग? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ड्रॉप्स. ड्रॉप्स क्या थे? डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस, स्टेटमेंट्स ऑफ ड्रॉप्स. फॉर डूइंग व्हाट? फॉर एनी स्पेसिफाइड पर्पस. व्हाट आई डू व्हेन आई गो देयर?
I evaluate the what is the position, okay? So we'll be recognizing the propositions, collecting the evidence, formulating a judgment and communicating through an audit report. ठीक है? तो एक ही इसमें कितने चीज़ें आ गई? Almost 7 things. What examination? Systematic. Of what you are checking? Drops. Why you are checking? For specified purpose. How you are checking? By recognizing proposition, collecting evidence, formulating judgment and communicating through audit report. समझ गए?